Hello everyone. So today we will be talking about a company from jewelry space who is posted as Q4FY25 numbers. The company name is Kalyan Jewellers, and the company has performed really well from past 2 years as well. If you अगर हम लोग उनका FY25 का numbers भी देखते हैं तो company has been growing at a faster pace than its peers in almost all the quarters, and also from a larger base as the company's market cap currently is around 57,000 crores as well. So normally कल्याण ज्वेलर्स का अगर बिजनेस मॉडल देखें तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है गोल्ड ज्वेलरी, स्टडेड ज्वेलरी और अदर ज्वेलरी प्रोडक्ट सेल करती है. कुछ साल पहले देखेंगे हम लोग तो कल्याण ज्वेलर्स वॉज प्रेडोमिनेटली अ साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी, जहाँ पे उनका 70 to 75% टॉप लाइन ग्रोथ वॉज कमिंग फ्रॉम साउथ इंडिया. बट फ्रॉम पास्ट 2 years इट हैज़ बीन अ ग्रोथ द ग्रोथ हैज़ बीन शिफ्टेड फ्रॉम साउथ इंडिया टू अ पैन इंडिया कंपनी, जहाँ पे उनका 67 to 70% टॉप लाइन ग्रोथ जो है वो नॉन साउथ इंडिया स्टेट से आता है, और 33% का जो परसेंटेज का शेयर है वो साउथ इंडिया से आता है. सो दिस shift has helped Kalyan to grow at a faster pace, and also expanding its stores aggressively. So this has been a growth story of Kalyan. अगर उनका Q4 के नंबर्स देखें, इफ़ यू गेट डोमेस्टिक नंबर्स, द इंडिया रीजन के नंबर्स अगर देखते हैं तो अगेन रेवेन्यू ग्रोथ इज़ इन डबल डिजिट्स, इन द हाई डबल डिजिट, आई वुड से 38% ग्रोथ इन द रेवेन्यू. अगर नंबर वाइज देखें तो इट हैज़ ग्रोन टू 5,350 करोर्स इन Q4 FY25. If we compare from the same quarter last year, it was around 3,867 crores. EBITDA also in the EBITDA also grew around 35% on YOY basis. If we see the PAT company got an operating leverage. PAT is around 41% to rupees 185 CR in Q4 FY25. If we compare to last year of same quarter, it is 131 crores. This all are numbers are the domestic India numbers of Kalyan Jewellers. If we look at the same store sales growth, it is very high, 21%, which shows the company's demand, the demand of the products, and there is no हम लोग देखें तो डिमांड नीचे नहीं गिरा है. डिमांड इज़ गोइंग अप ओनली. इवन नॉट जस्ट इफ वी सी which indicates this numbers is that not even the new stores which are performing, but also the older stores of Kalyan Jewellers are also been seeing good demand and good footfalls as well in Q4. So if we also see the model of Kalyan Jewellers, it is company operates in both FOCO and COCO model, and I have explained this in my previous video of Q3 when I was explaining the Kalyan Jewellers. So what is FOCO model, what is COCO model? So you can check out that video in my YouTube channel as well. I will paste the link of my YouTube channel in the comment section. So yeah, so if you see the FOCO model में revenue contribution is around 42% and COCO model is around 58%. अगर हम लोग नॉन साउथ और साउथ रीजन के हिसाब से भी हम लोग देखें, SSG growth is very strong. Non-South revenue SSG is around 22%, and South SSG is around 20%. So again, it's a double-digit growth in all the factors for Kalyan Jewellers. Now, if you look at the gold का revenue, gold prices का gold revenue कितना हुआ कंपनी का, तो gold revenue grew around 33% to rupees 35,685 millions. From last year same quarter, it was around 26,803 millions. Studded revenue पे देखिए it grew around 48%, which is even a great number. And studded share देखिए हम लोग for Kalyan it is of 31%, and management ने बोला भी है कि 31% ही studded का शेयर होगा, and in FY26 it will not at all grow. If you look at the Middle East जहाँ पे उनके स्टोर्स है मिडल ईस्ट में भी एक्सपेंशन किया है कंपनी ने. सो मिडल ईस्ट का मार्केट ऑल्सो हैज़ परफॉर्म रियली वेल फॉर कल्याण ज्वेलर्स. इफ़ यू लुक एट दी रेवेन्यू ग्रोथ, इट इज़ ऑफ अराउंड 26%. शोरूम्स उतनी है, 36 शोरूम्स ही है जो अभी तक है, उन्होंने शोरूम ऐड नहीं किया अभी. If you look at the EBITDA is also high of 33%. PAT is also high of 22%. उनको यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला बिकॉज मिडल ईस्ट में कुछ टैक्स चेंजेस हुए थे, जिसकी और हाई इंटरेस्ट कॉस्ट भी है, जिसकी वजह से उनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल पाया इन दिस क्वार्टर ऑल्सो. सो इफ़ यू लुक एट कॉन्सोलिडेटेड नंबर्स देखिए अगर हम लोग कल्याण ज्वेलर्स का, तो रेवेन्यू ग्रो अराउंड 37%. EBITDA is around 35% growth. PAT is again 36%. Consolidation में उनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला बिकॉज मिडल ईस्ट का PAT was around 22%, बिकॉज ऑफ विच PAT is slightly down due to which उनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल पाया.
अगर हम लोग पैट मार्जिन्स भी देखें तो FY25 में पैट मार्जिन्स कंपनी का 2.9% है, FY24 3.2% था. सो दिस इज़ बिन इम्पैक्टेड ड्यू टू कस्टम ड्यूटी रिडक्शन जो लास्ट ईयर हुआ था, जिसकी वजह से उनको एक वन टाइम लॉस फेस करना पड़ा विच वॉज अराउंड 12 करोड़. अगर कंपनी का हम लोग ROE देखें विच इज़ ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी जो शेयर होल्डर्स को बेनिफिट करता है, तो वो देखें इसमें इट हैज़ क्लियरली डबल्ड. अगर हम लोग FY22 का देखते हैं तो ROE इज़ अराउंड 7.5%. तो अगर उस टाइम में हमने ये सोच के रखा था कि ROE सिंगल डिजिट में है, तो अगर हम लोगों ने नंबर्स देख के इन्वेस्टिंग किया होता तो दिस ग्रोथ विच हैज़ डबल्ड नाउ टू 15.9% वो हम लोग विटनेस नहीं कर पाते. सो इसीलिए बोलते हैं वी नीड टू कंटिन्यू टू ट्रैक दिस बिजनेस एंड वी नीड टू कंटिन्यू ट्रैकिंग दिस businesses every quarter and then decide whether how much to invest and how much not to invest. It's your complete purely your own decision. अगर स्टोर एडिशन भी देखते हैं तो कंपनी ने एड अराउंड 25 न्यू स्टोर्स ऐड किए इन इंडिया एंड कैंटर को लेके 14 इन इंडिया एंड कैंटर इज़ अराउंड 14 न्यू स्टोर्स विच कंपनी इज एडेड. टोटल को स्टोर काउंट देखोगे कल्याण के विच इज़ ऑफ अराउंड 388 स्टोर्स. सिर्फ कल्याण का इट्स 315 स्टोर्स एंड कैंटर इज़ अराउंड 73. कंपनी हैज सीन रोबस्ट ग्रोथ. जो भी फेस्टिवल के अक्षर तृतीया उनमें हायर का कंज्यूमर डिमांड दिखा है, फुटफॉल्स हाई एंड कंपनी इज़ ऑल्सो प्लानिंग. अगर हमने प्रीवियस क्वार्टर का गाइडेंस भी देखा होगा FY26 के लिए, इट वाज अराउंड 170 स्टोर्स का कल्याण इज़ गोइंग टू ओपन FY26, जहाँ पे अराउंड 90 स्टोर्स आर फ्रॉम कल्याण एंड 80 स्टोर्स इज़ ऑफ कैंटर जो उनका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो वो एज अ स्टोर वाइज भी ओपन कर रहे हैं. अगर कॉनकॉल की बात देखें, कॉनकॉल वॉज रियली गुड. आई वुड से पॉजिटिव कॉनकॉल था, जहाँ पे उन्होंने पहले डेट की बात की, जहाँ पे उन्होंने अराउंड 520 करोड़ का डेट रिड्यूस किया इन FY25 में कहा क्लियरली, और अराउंड 250 करोड़ का डेट उन्होंने इंडिया में रिड्यूस किया है. सो इट इज़ अ वेरी गुड साइन बिकॉज जितना डेट रिड्यूस होगा उतना इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा एंड डेट विल बेनिफिट PBT मार्जिन्स एज वेल. मैनेजमेंट ने बोला कि उन्होंने फोकस किया था टू रिड्यूस नॉन GML. हाउएवर नॉन GML जो ग्रॉस मेटल लोन रेट से नॉन ग्रॉस मेटल लोन का जो सेक्शन है उनका वो रिडक्शन का फोकस था, बट ग्रॉस मेटल लोन जो है उनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ गया फ्रॉम 3.5% टू 3.5% टू 5% कुछ 3-4 महीनों में, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम रिडक्शन हुआ है डेट में वो ग्रॉस मेटल लोन के साइड हुआ है, बट और नॉन ग्रॉस मेटल के साइड नहीं हुआ है. बट कंपनीज फोकस की उन्होंने टारगेट किया है कि अराउंड 300 to 400 करोड़ का डेट रिडक्शन करने वाली है इन FY26. सो वहाँ पे मैक्सिमम focus will be on non-GML side of debt reduction instead of GML side, जहाँ पे इस बार because of higher interest rates in GML side, जहाँ higher interest rate की वजह से वहाँ पे फोकस ज़्यादा हो गया compared to non-GML. अगर हम लोग कैंडर का देखें, मैनेजमेंट ने ये बोला कि कैंडर के भी नंबर्स देखते हैं हम लोग पहले, तो कैंडर ने अपना रेवेन्यू पोस्ट किया अराउंड 28 करोड़ का इन Q4FY25, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में अराउंड 36 करोड़ था. सो इट्स बिन डाउन when it comes to कैंडर रेवेन्यू. इवन लॉस भी थोड़ा बढ़ गया है, लॉस इज अराउंड 12 करोड़, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इट वॉज अराउंड 70 lakhs. बट कंपनी इज पॉजिटिव, मैनेजमेंट इज पॉजिटिव when it comes to the expansion of कैंडर showrooms. They are going to open, as I said, 80 कैंडर showrooms, and management का ये भी कहना है कि they will be PAT positive in FY26. They are focused to be PAT positive FY26 में when it comes to कैंडर. एंड उन्होंने एक पैन लेवल का एक कैंपेन भी करने वाले फॉर कैंडर. हाउएवर दे हैव स्टॉप्ड करेंटली बिकॉज ड्यू टू पहलगाम टेरर अटैक्स, जिसकी वजह से उन्होंने जिसका कैंपेन रोक के रखा है. बट दे आर गोइंग टू सून गोइंग टू डू अ नेशन वाइड कैंपेन फॉर कैंडर स्टोर्स. उन्होंने मैनेजमेंट ने व्हेन इट कम्स टू डिमांड, मैनेजमेंट ने बोला कि डिमांड इज़ वेरी हाई. दे हैव नॉट सीन एनी रिडक्शन इन द डिमांड. जब भी गोल्ड प्राइसेस हाई होते हैं तो कस्टमर्स क्या करते हैं, वो थोड़े प्रीपोन कर देते या पॉज कर देते टू बाई ज्वेलरी, बट देन अल्टीमेटली दे विल डेफिनेटली कम टू बाई ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, एंड दे विल डेफिनेटली कम टू बाई गोल्ड प्रोडक्ट्स एज वेल. सो डिमांड देयर इज़ नो रिडक्शन इन डिमांड. एंड वही उनका हम लोग SSG भी देख पा रहे हैं कि अराउंड 21% का SSG स्ट्रॉन्ग फुटफॉल से,
नॉट जस्ट वो स्टोर्स जो नए स्टोर्स है उसमें फुटफॉल्स दिख रहे हैं, बट द ओल्ड स्टोर्स एज वेल जो कल्याण के वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग फुटफॉल्स है. सो कंपनी इज़ परफॉर्मिंग वेल एंड इवन द डिमांड इज़ ऑल्सो हाई. जैसे अभी फेस्टिवल के अक्षय तृतीया का जहाँ पे उन्होंने अगेन स्ट्रॉन्ग फुटफॉल्स देखा है, और SSG भी सॉलिड है व्हेन कम्स टू द फेस्टिवल. मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि जब भी गोल्ड प्राइसेस हाई होते हैं, इट बिकम्स ईजी उनके सेल्स पर्सनस के लिए कि या उनके जो शोरूम में है कि उनको ईज़िली कन्वर्ट कर सके फ्रॉम गोल्ड ज्वेलरी टू अ डायमंड ज्वेलरी में बाई करने के लिए. बिकॉज कस्टमर्स तो एक फ़िक्स बजट लेके आते हैं अपना कि 5 लाख पे या 1 लाख पे दे वांट टू बाई दिस मच कैटेगरी ऑफ ज्वेलरी. बट देन दे व्हेन द गोल्ड प्राइसेस आर हाई, सो प्राइसेस जब हाई होते हैं तो वो वॉल्यूम कम हो जाता है. सो what the salespersons do is that they try to convert them to buy a studded jewelry, which is also good, which is also of good quality and good demand. सो वो बाई करते हैं जिसकी वजह से उनको फुटफॉल में प्रॉब्लम नहीं होता. एंड दिस इज़ ऑल्सो एन एडवांटेज फॉर कल्याण कि व्हेन दे ट्राई टू कन्वर्ट अ कस्टमर जो गोल्ड ज्वेलरी लेके आया है, बट देन द demand is but then the prices are high, that they are able to convert them to buy studded ज्वेलरी. वो खाली हाथ नहीं जाते. दे उनका एक फ़िक्स बजट है, वो फिक्स बजट के हिसाब से दे एबल टू बाई, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर कल्याण. अगर कीपिक्स प्लान्स देखोगे कल्याण के, तो FY25 में दे डिड अ कीपिक्स ऑफ अराउंड 350 करोड़, जहाँ पे उन्होंने फॉर न्यू स्टोर्स एक्सपेंशन उन्होंने कीपिक्स किया अराउंड 120 करोड़ का, एंड द रिमेनिंग वॉज फॉर मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड स्टोर्स एंड रिवैम्प करने के लिए केपेक्स किया था 130 करोड़ का. सो मैनेजमेंट ने बोला है कि FY26 के लिए दे आर गाइडिंग फॉर अ केपेक्स ऑफ मोर देन 200 करोड़ का केपेक्स उन्होंने गाइड किया है, जहाँ पे साउथ के स्टोर्स का केपेक्स विल बी अराउंड 50 करोड़ का. मेंटेनेंस के लिए उनको केपेक्स करना पड़ेगा अराउंड 150 करोड़ का. एंड कैंडर का जो अलग से केपेक्स करेंगे वो लोग जो स्टोर्स ओपन करने वाले हैं, विच विल बी ऑफ अराउंड 60 to 80 करोड़. सो केपेक्स इज़ ऑल्सो वेरी गुड. आई वुड से मैनेजमेंट कंटिन्यूसली स्टोर्स एक्सपेंड कर रही है, तो उसके लिए उनको अपफ्रंट केपेक्स करना ज़रूरी पड़ जाता है. So this is also a very good sign when it comes to the company's growth, when it comes to the growth perspective. Also PBT margins अगर उनके देखोगे तो PBT margins are went down to around 3.8%, बट उनका जो इन्वेंट्री लॉस हुआ एंड कस्टम ड्यूटी डिडक्शंस हुआ, अगर एडजस्टेड देखोगे भी अराउंड 4.3%. हाउएवर अब वो कस्टमर ड्यूटी डिडक्शंस वगैरह अब नहीं होगा इन FY26. सो ड्यू टू विच उनको मैनेजमेंट ने गाइड किया कि दे विल बी अराउंड PBT मार्जिन्स ऑफ अराउंड 5%, विच विल रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ डेट रिडक्शन होगा तो उनका PBT मार्जिन्स भी बढ़ेगा. एंड लोअर डेट रिडक्शन होगा तो इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा एंड PBT मार्जिन्स भी बढ़ेंगे. एंड लोअर इम्पैक्ट होगा इन्वेंट्री से जो उनका जिसकी वजह से उनका लॉस हुआ. सो ड्यू टू विच मैनेजमेंट ने गाइड किया FY26 का PBT मार्जिन्स ऑफ अराउंड 5%. सो अगर आप ग्रोथ देखोगे कल्याण का, इट्स वेरी गुड. कंपनी हैज़ बिन कंसिस्टेंटली ग्रोइंग अबव 30% का ग्रोथ, वो सेल्स ग्रोथ लेके आ रही है कंपनी कंसिस्टेंटली फ्रॉम पास्ट टू 1.5 ईयर्स का. अगर मैं उनका रिजल्ट्स का देखूँ तो और परफॉर्मेंस भी देखूँ तो कंपनी ने अपना मॉडल चेंज किया था, जिसकी वजह से उनका EBITDA मार्जिन्स में लो हुआ, बट देन PBT मार्जिन्स जहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा. सो देखो विच आप PBT मार्जिन में डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड, और वो 5% जितना होगा इन FY26. सो अगर आप देखोगे ग्रोथ के मामले में कि डिमांड इज़ वेरी हाई, पर्टिकुलर गाइडेंस नहीं देते कंपनी डिमांड ग्रोथ के मामले में, बट देन अगर हम खुद ही देखें कि केपेक्स प्लान्स इतने अच्छे हैं, स्टोर एक्सपेंशन इज़ वेरी एग्रेसिव, प्लस डिमांड इज़ वेरी हाई, फुटफॉल्स आर हाई. SSG का जो ग्रोथ है, नॉट जस्ट ऑन द न्यू स्टोर्स बट ऑल्सो ऑन ओल्ड स्टोर्स ऑल्सो विच वेरी हाई, अराउंड 20-21% का ग्रोथ है. एंड प्लस द PBT मार्जिन्स जो गाइड कर रहे हैं 5%, तो कंपनी इज मूविंग इन टू द राइट डायरेक्शन, आई वुड से दैट. एंड प्लस वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव से भी देखिए का डील अच्छा लग रहा है. कंपनी इज़ डूइंग गुड, वैल्यूएशंस आर ऑल्सो गुड, आई वुड से. फॉरवर्ड PE is around 40-41 का फॉरवर्ड PE है, which is again it's a good thing. So yeah, I would say that it's a good company to track. Invest करना नहीं करना, it's up to you. Do your own diligence, but to track this company is really we get to know that how the jewelry sector is performing. And yeah,
So this is from my side for when it comes to Kalyan Jewellers results. Performance अच्छा है, growth is good, management con call is positive, and yeah, sector is in a tailwinds, I would say that. So yeah, so this is also all is getting benefited to the company. So yeah, thank you so much for watching this video. Keep on supporting, and this is not a buy or sell recommendation from my side. Do kindly consult your financial advisor when it comes to investing, and tips वगैरह पे नहीं जाके हम लोग खुद ही if we track the company and if we go through the documents of the which the company is providing, whether it's the PP investor presentation या con call, अगर हम लोग खुद ही ट्रैक करें ना, it will much better for you also to gauge how the company is performing, rather than just checking the charts or just going through how just going through what others are posting. Yeah, so thank you so much, have a great day.